اور میرا پہلا پروگرام ہی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت سب سے اہم نام ہے، اور وہ ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب، جنہوں نے اتنی مصروفیت میں، جو کہ پنجاب میں بیٹھے ہیں، لاہور میں ہیں، پریزنس نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی پنجاب میں، اتنی کوششیں کر رہے ہیں اور ٹائم بھی نہیں ہے لیکن ہمیں وقت دیا، تو ان سے ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کے بارے میں، انتخابات سے پہلے جو اس وقت ماحول ہے، انتخابات کے بعد کیا ماحول ہوگا اور پیش منظر کیا ہوگا، ان سے ساری گفتگو آج کے اس پروگرام میں ہوگی۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا اور واقعی اتنی مصروفیت میں سے وقت دیا ہے کہ مجھے باقاعدہ یہ تسلیم کرنا پڑے آپ کے ساتھ زبان کی بھی تھی، وعدہ کیا ہوا تھا۔ جی جی ایسے ہی ہے سر، بہت شکریہ۔ اور آپ پنجاب میں ہیں، لاہور میں ہیں، سچی بات ہے بہت، آپ پہلی دفعہ ہمارے دفتر آئی ہیں لاہور میں جی، اور بڑے عرصے کے بعد پنجاب میں ہمیں پیپلز پارٹی کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں، لاہور میں پیپلز پارٹی کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو اب آپ کا ٹارگٹ پنجاب ہے، اب ہم یہ سمجھ لیں؟ ہمیشہ کے لیے ٹارگٹ پنجاب تھا اور رہے گا۔ پنجاب میں اتنی محرومیت ہے کہ لوگوں کو، دوستوں کو نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو سندھ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم وہاں پرائسز بڑھا دیتے ہیں ایگریکلچر پروڈکٹس کی، تو پنجاب کو بھی ریٹ مل جاتا ہے۔ 75% تو پنجاب از ایگریکلچر۔ سو انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی ہی آتی ہے تو ایگرو فرینڈلی پالیسیز لاتی ہے، بیکاز وی نو دی پلس آف دا پیپل، اور اسی سے گہما گہمی ہوتی ہے، اسی سے ملک میں لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے۔ If you remember last time جب میں پاور میں تھا، we were importing wheat, we were importing sugar, we were importing everything. In 1 year, we managed by giving the right rate to become self-sufficient. ظاہر ہے وہ کسانوں کو آپ نے خوش کیا، لیکن زرداری صاحب لمبا سفر ہے، پنجاب میں 30 سال کے بعد پیپلز پارٹی واپس آئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے لمبا سفر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ہر گاؤں میں ایگزسٹ کرتی ہے، ہر محلے میں ایگزسٹ کرتی ہے، کم زیادہ وقت۔ آپ کو تو پتہ ہے ریسنٹ پولیٹیکل سینیور کا کہ بی بی صاحبہ کے زمانے سے ہمیں پنجاب میں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے باوجود کبھی ہم لے لیتے ہیں، کبھی ہم کو نہیں ملتا، پر انشاءاللہ اس دفعہ ارادہ ہے کہ پرماننٹلی پنجاب میں بیٹھنا ہے۔ کتنی سیٹیں نکالیں گے؟ مولا کے ہاتھ میں ہے، بٹ انشاءاللہ اچھا رزلٹ دیں گے ہم آپ کو پنجاب، انڈیپینڈنس کے بغیر، انڈیپینڈنس کے بغیر۔ 30 سے 35 ہم کہہ سکتے ہیں نشستیں نکال لیں گے؟ اتنا تو میں بڑا بول نہیں بولوں گا، مگر اللہ خیر کرے گا۔ تو انڈیپینڈنس کی بات جو کی ہے بلاول صاحب نے، پہلے تو یہ بتائیے کہ بلاول صاحب پہلی بار پنجاب میں آئے ہیں، ان کو بڑا اچھا ریسیپشن ملا ہے یہاں پہ، توقعات سے شاید بڑھ کے ملا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ، لیکن ان کا لہجہ بہت تلخ ہے، اینٹی نواز لیگ ووٹ جو ہے اس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ مفاہمت ہیں، وہ مزاحمت ہیں، یہ شعلہ اور شبنم والی سیاست جو ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گی؟ وقت بتائے گا، اور سوال یہ ہے کہ الیکشن میں تو ایک دوسرے کے اوپر تنقید جائز ہے، جائز نہیں ہے، جائز ہے، اور اگر بلاول اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اینٹی نواز ووٹ کو، میرے حساب سے تو اینٹی نواز پرو نواز ووٹ ہے نہیں، اینٹی نواز ووٹ ہے، تو اینٹی نواز ووٹ کو ہم نے اٹریکٹ ضرور کرنا ہے۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایبسنس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسان ہے پیپلز پارٹی کے لیے؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ will always remain for now and for the near future a side show. یعنی دوبارہ مین پارٹیز بنیں گی، پی ایم ایل این اینڈ پی پی پی، اینڈ وی ول بیٹل اٹ آؤٹ اینڈ دین ٹیک، جو بھی ہمارے ساتھ دوست آ جائیں، کچھ ہمارے ساتھ آ جائیں یا ان کے ساتھ آ جائیں، تو وی ول۔ تو یہ امید ہے آپ کی کہ جو انڈیپینڈنس ہے وہ ظاہر موسٹلی تو تحریک انصاف کے ساتھ ہے، انہوں نے ظاہر کوئی سمبل نہیں ہے ان کے پاس، لیکن تو دیکھیں نا تحریک انصاف کے پاس بھیجے گئے تھے، تحریک انصاف کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی فلسفی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بدتمیزی کا ایک ڈرامہ ہے، تو وہاں گئے تھے۔ اب بچے بھی ان کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ دوست آنا چاہتے ہیں،
पुराने वापस इलेक्टेबल्स भी पंजाब में वापस आना चाहते हैं। वापस आना चाहते हैं और गए ही हमसे हैं, बाय एंड लार्ज तो पीपल्स पार्टी से गए हैं। तो आपको लगता है वो आ जाएंगे इलेक्शन से इंशाल्लाह। पहले या इलेक्शन के बाद? इलेक्शन से पहले तो वक्त नहीं रहा, इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह आ जाएंगे, और उनमें से जीत के भी आएंगे कुछ लोग, कुछ जीत के आएंगे। जैसे लतीफ खोसा साहब वगैरह हैं। I'd be surprised अगर लतीफ खोसा साहब जीत जाते हैं तो। अच्छा, तो अब पंजाब से वो सरप्राइज होगा अगर वो जीत जाते हैं, लेकिन वैसे सरप्राइज मिल सकते हैं आपको? वैसे सबको सरप्राइज मिल सकता है। देखिए, बिलावल साहब ने एक पोजीशन ले ली है। वो ये कहते हैं कि मैंने अपोजिशन में बैठना है अगर मैं हुकूमत नहीं बना सकूंगा। लास्ट इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि नहीं, हम सबको मिलके चलना पड़ेगा। तो क्या नजर आ रहा है आपको, मखलूत हुकूमत को? पार्टी की ये सोच है और बिलावल उस सोच का अक्स है कि हमें सिंगुलरली अपने आप को आगे बढ़ाना है। जब हम किसी को साथ लेते हैं तो उनका, जिसे कहते हैं ना, उनकी इनकॉम्पिटेंस भी हमारे खाते में आ जाती है। जिस तरह अभी ये 15 महीने में जो हुकूमत चली है तो उनकी इनकॉम्पिटेंसी का इशू हो रहा है, उनको भी हो रहा है। सारी बात है, कुछ दोस्त हमसे भी पूछते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि दोनों जमातों ने, PMLN ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी अपनी जो सरमायाकारी थी सियासत की, उसको दाव पे लगाया और ये 16 महीने हुकूमत की, लेकिन अब पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदारी सारी की सारी PMLN के ऊपर डाल रही है? क्या ये दुरुस्त? प्राइम मिनिस्टर वो थे ना, हुकूमत वो चला रहे थे। आपने बनाए थे? नहीं, मैंने बनाया था, बिल्कुल मैं अल्लाह मानता हूँ, मैंने बनाया था, मगर मैं समझा कि ये दूर के ढोल सुहाने होते हैं ना, तो मैंने कहा, सब कहते थे कि बड़ा हार्ड वर्किंग है, ये वो है, 10 बजे सो जाता है, सुबह को 8 बजे उड़ जाता है और चलता रहता है, मगर कुछ मेंटल माइंडसेट जो है ना, ये लकीर के फकीर है, ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते। और हमें जो इश्यूज इस वक्त हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के बगैर नहीं चल सकते। तो इसीलिए आपको मायूसी हुई? आपने उस दौरान कहा शहबाज साहब से कि परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। अब उसकी बात करना ही बेकार है, वाटर अंडर द ब्रिज जरूर कहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी अगर बड़ा नंबर नहीं लेती तो वो अपोजिशन में बैठना पसंद करेगी। पीपल्स पार्टी अगर बड़ा नंबर नहीं लेती, हमने पहले भी अच्छे नंबर लिए हैं और इंशाल्लाह इस दफा ज्यादा बेहतर लेने का इरादा है, तो हुकूमत बना भी सकते हैं। बनाने के इम्कानात ज्यादा हैं या आप प्रेसिडेंसी में बैठेंगे? नहीं, प्रेसिडेंसी या नो प्रेसिडेंसी या प्राइम मिनिस्टरशिप, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर्स। नंबर गेम है ना। क्या ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर PMLN का हो, प्रेसिडेंसी आपके पास हो, या प्रेसिडेंसी उनके पास हो और प्राइम मिनिस्टर आपका हो? ये भी हो सकता है। तो दीज आर ऑल वे बिफोर थॉट प्रोसेस। ये जो अदम एतमाद थी, ये आपकी वजह से हुई। हमें याद है कि डोनाल्ड लू से पहले आपके दिमाग में ये जहन में आया था कि हमें अदम एतमाद लानी चाहिए। तो अभी भी तो शुरू से पीपल्स पार्टी की फिलॉसफी थी, वरना तो पहले दिन ये बाइकआउट करके और रिजाइन करना चाह रहे थे। हमने रास्ता रोका कि हम बाइकआउट नहीं करेंगे और आप भी ना करें, तो फिर सब पार्टियों ने बाइकआउट नहीं किया और पार्लियामेंट में रहे। अगर पार्लियामेंट में ना रहते तो वो ये नो कॉन्फिडेंस में भी हिस्सा ना ले सकते। बिल्कुल हमने अपना किरदार किया और अपना हिस्सा डाला नो कॉन्फिडेंस में। हो सकता है दूसरों से हमारा ज्यादा हो, बिल्कुल, और वो ज्यादा नजर भी आया हमें। लेकिन अब जाहिर है आप कह रहे हैं कि सब इकट्ठे थे और फिर सर्वाइवल के लिए आप इकट्ठे रहे, या आपने सोचा कि नहीं हमें अभी रहना है? आप अलग भी हो सकते थे वजारतों से, पीपल्स पार्टी वजारतों। हाँ, मगर वो किसी को ला के उसको बिठा के उसको फिर बैक स्टैब करने जैसा होता ना। अगर मैं वजारतों से हट जाता, और पार्टी की काफी सोच थी, स्पेशली बिलावल की, वो तो कहता था आई रिजाइन। वो तो उन्होंने टीवी इंटरव्यू में भी कहा है कि मुझे तो वालिद मोहतरम ने कहा था कि आप रुके, तो मैं उनकी वजह से रुक गया। एक्सपीरियंस चाहिए था ना फॉरेन मिनिस्ट्री का बिलावल के लिए। तो अब आप उनको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं? इंशाल्लाह। आपकी पार्टी ने आपने फैसला कर लिया कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। इंशाल्लाह। तो जरदाई साहब, नंबर्स पे वापस आती हूँ। सिंध की अगर आप सारी नशिस्तें भी जीत लें, जो कि 61 है नेशनल असम्बली की, बलूचिस्तान से भी अगर आप ले लें, आपको क्या लगता है बलूचिस्तान से आप 4 से 5 से ज्यादा नशिस्तें ले सकते हैं? टोटल 16 है वहाँ की।
इंशाल्लाह जरूर और ज़्यादा लेंगे. ज्यादा लेंगे. और खैबर पख्तूनख्वा से खैबर पख्तूनख्वा भी मुकाबला है और विंटर है. विंटर में टेररिज्म कम होता है. ये हमेशा समर वॉर्स होती है. तो टेररिज्म कम होगा तो उम्मीद है कि लोग आ जा सकेंगे और वोट डाल सकेंगे. लेकिन मौसम तो सर्द होगा, उसकी वजह से. मौसम सर्द, पहले भी इस मौसम में इलेक्शन हुई है. जी 18 फरवरी को जो मोहतरमा की शहादत के बाद तो 18 को हुआ था. लेकिन अच्छा, तो वहाँ पे भी आप कह रहे हैं कि आप अच्छी नशिस्तें निकाल लेंगे खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब से भी आप निकाल लेंगे. तो अगर आपकी कुल मतलब 80 से आपको लगता है नेशनल असेंबली में 80 नशिस्तें आपकी आ जाएंगी? मुझे लगता है बिल्कुल कि अच्छी खासी आ जाएंगी. कुछ रोड ब्लॉक्स हैं, अगर वो ना हो तो हो सकता है पूरा कराची आप जीत सकते हैं. पूरा कराची दे सकते हैं. और अगर वो रोड्स खुल जाए तो कितनी सीटें? सारी कराची की सीट है इस सूरत हाल में भी. इस सूरत हाल में. तो ये वो सरप्राइज होगा जो कि आप दे सकते हैं सिंध के हवाले से. अगर जैसे मैंने कहा कि कुछ रोड ब्लॉक्स हैं, कुछ लोग गुमराह हैं, तो वन हैज टू, इंसान को हालात के साथ समझौता करना चाहिए. हालात आपके साथ समझौता नहीं करते. कुछ दिन पहले बिलावल साहब ने कुछ हफ्तों पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमने जरदारी साहब से कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, और अगर ना हुआ तो फिर हमारे हाथ खोलने पड़ेंगे. तो ऐसे लगता है उसके बाद वो मुतालबा ख़त्म हो गया है. आपने कोई लेवल प्लेइंग के लिए काम कर लिए? करते रहते हैं, ये तो इलेक्शनों में होता रहता है. कोई कहाँ से शोर करता है. अब यहाँ लाहौर में एक इशू हो गया कि लोग अरेस्ट हो रहे थे. ऑब्वियसली हमें एक्चुअल रीज़न बताए बगैर लोग अप्रोच करते हैं. एक्चुअल रीज़न ये थी कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो नहीं दे रहे थे उन पे कार्रवाई हो रही थी. कोई 7,000 लोगों को वो या उठा रहे थे या नोटिस दे रहे थे या कुछ कर रहे थे. उसमें कुछ हमारे वर्कर भी होंगे. तो बात ये होगी कि जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है. एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू. वो किसी और मद में उठाए जा रहे थे बच्चे. लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड और भी तो होती है ना. मतलब आपको पता है कि जो ताकत के मराकज हैं उनके साथ भी तो कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड होती है. वहाँ तो हर्डल्स दूर हुए आपको लगता है पीपल्स पार्टी के लिए? नहीं, पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा रिस्पेक्ट रही है. भुट्टो साहब के ज़माने से, बीवी साहबा के ज़माने से कभी भी ये नहीं हुआ कि किसने पीपल्स पार्टी को एक्सेप्टेंस ना दी हो या रिस्पेक्ट ना दी हो. इसलिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो वो एक ही पार्टी है, पीपल्स पार्टी. तो वो हमेशा से रही है, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी. लेकिन एक न्यूट्रल सा इन्वायरमेंट लगा है कि पीएमएलएन के बलूचिस्तान से आने के बाद फिर पीपल्स पार्टी में कुछ लोग बलूचिस्तान से वापस आए, आपके साथ आए, तो ऐसे लगा कि एक मैदान खुला हो गया है या फिर पीपल्स पार्टी को भी उस प्रोसेस में शामिल कर लिया गया है? पीपल्स पार्टी बेसिकली बलूचिस्तान का ऑल्टरनेटिव है ही पीपल्स पार्टी. और फेडरल पार्टी जिसके प्रोविंशियल रूट्स भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, सिंध में भी हैं, केपी में भी हैं, पंजाब में भी हैं, साउथ पंजाब में भी हैं. हर जगह हमारे रूट्स हैं. तो बलूचिस्तान में भी बहुत पुरानी हमारी मेहनत भी हुई है, रूट्स भी हैं. और बलूचिस्तान को मैं पाकिस्तान का फ्यूचर समझता हूँ. तो उसको ठीक करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है. So one has to work very gradually, slowly, प्यार से बलूचों को संभालना पड़ेगा. मिसिंग पर्सन्स का इशू भी हल करना पड़ेगा. सब हल करने पड़ेगा. तो इस पे मैं अगर आऊँ कि बिलावल साहब कहते हैं कि एक लाडला प्लस है इस वक्त, तो मियाँ साहब की तरफ उनका इशारा है. आप भी समझते हैं कि मियाँ साहब लाडले? वो हमेशा होते ही लाडले हैं. कभी हुआ है कि मियाँ साहब लाडले न रहे हों? जब लाडले नहीं रहते वो पावर से निकल जाते. तो अभी भी उनके साथ वही लाडला वाला सलूक हो रहा है? चले है. इसीलिए कैंपेन लेट शुरू हुई आपके ख्याल में पीएमएलएन की? नहीं, पीएमएलएन आई थिंक इंतज़ार कर रही थी वक्त का, टाइम का, और उनके लोग भी काफ़ी सस्पेंस में थे, तो अब उनने शुरू किया. जरदारी साहब, इतना बहरान नजर आता है इलेक्शंस के बाद. जब मैं आया था
बीवी साहबा के शहादत के बाद उससे बड़ा बुरहान तो नहीं है। सही बात है। उस वक्त बहुत बड़ा बुरहान था। गंदम से लेके चीनी से लेके हर चीज आप इंपोर्ट कर रहे थे, तो पीपल्स पार्टी ने संभाला और हमने दोस्तों को भी तकलीफ नहीं दी, अरब दोस्तों को, उनसे मैंने उधार भी नहीं लिया, सिर्फ लोकली जनरेट किया, पैसा भी लोकली जनरेट किया और एफबीआर को थोड़ी नथ डाली, एंड वी मैनेज टू कलेक्ट एंड वी मैनेज टू एक्सपोर्ट. By the time I was leaving, 25 billion. When I came in, stocks were trading at 7,000. जब मैं निकला हूँ तो it was 29-30,000. आज stocks are at 40 something. And अगर उनको और पेट्रनाइज किया जाए स्टॉक एक्सचेंज को, जो I feel is the way to the future, not anything else. You can take Pakistan out of all the issues. We don't need foreign investment. As far as I'm concerned, we need investment from within Pakistan. And that's available if you give the right policy, the right law, and the right vehicle. लेकिन ज़रदारी साहब, एक SIFC का इदारा बनाया गया जो कि पैरेलल है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, या एक जिसे कहना चाहिए सिविलियन गवर्नमेंट के पैरेलल है, बल्कि उससे ज़्यादा इख्तियारात रखता है, तो आपको लगता है उसकी मौजूदगी में आपकी ये पॉलिसी, अगर आप गवर्नमेंट बनते हैं तो ये अमल दरामद इस पे हो सकेगा? It's a question of individuals and mindset. उनका mindset is to be trained. वो कोई गैर पाकिस्तानी नहीं है, उनका mindset अलग है. वो माइंडसेट आपको कैसे कबूल करेगा फिर? हमें कबूल करेगा नहीं तो हमें हमारे साथ काम तो करेगा ना, करना पड़ेगा उसको. लास्ट टाइम भी काम किया, इस दफा भी करना पड़ेगा. सो वी मेक देम, वो हमारी शर्तें मानते हैं कि हमारी जो भी सोच है उस पर अमल करेंगे. तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो मुआशी बहरान है इसका सलूशन आपके पास मौजूद है? बिल्कुल. और आप इसको हल करेंगे? इसको हल करेंगे. महंगाई कम होगी? महंगाई भी कम होगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और इंपोर्ट पे भी डिपेंडेंसी कम होगी. मगर आपको फुल हैंड दिया जाए? फ्री हैंड होता है जब आदमी गवर्नमेंट में होता है, ये बाने हैं. अच्छा, यानी ये मेरी जब मैं प्रेसिडेंट था तो काफी क्वार्टर्स में मेरा फ्री हैंड नहीं था, तो आई कट दैट आउट. उसके अलावा जो क्रीज थी उस पर हमने बैटिंग की. इसलिए एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं आपके ख्याल में उस वक्त? अभी तक मैं ख्याल है उस जमाने की एक्सपोर्ट्स ही सबसे ज्यादा है. तो ज़रदारी साहब, मगर सियासी बहरान का आप क्या करेंगे? इतनी तकसीम पहले नहीं थी जो आप 2008 की बात कर रहे हैं. तकसीम और नफरत जो थी वो नहीं थी. इतनी तकसीम थी कि लोग यूनिफॉर्म में बाहर नहीं निकलते थे. लोग अपनी लाशें लेने के लिए तैयार नहीं थे. कहते थे हमने आपको नहीं दिया था कि आपको हम इस बॉर्डर पे मरवाएं, ये हमने इंडिया के लिए, जहाद के लिए दिए हैं. और वो बीबी की शहादत के बाद टोटली टर्नओवर हुआ. तो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट सोच सकते हैं, समझ सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल जो आपकी एक अरीना है उसके अंदर थोड़ा सा लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ना पड़ेगा तब आप. लेकिन ये जो इमरान खान साहब का फिनोमेना है, ज़ाहिर है एक तकसीम की, आप लोग कहते हैं कि उन्होंने तकसीम बढ़ा दी और वो सब कुछ कर दिया, उसको कैसे आप यंग जनरेशन को, जिसे कहते हैं ना, यंग जनरेशन को एग्रेशन की तरफ, तो पहले भी हुकूमत में हुआ है, दुनिया की पॉलिटिक्स में होता रहा है. एक ऐशता पूरा रिपब्लिकन्स का, एवरी चाइल्ड वाज बिकमिंग मोर रिपब्लिकन देन डेमोक्रेट. फिर डेमोक्रेट्स का वेव आया, देने लोग डेमोक्रेट्स बनने लगे रादर देन. तो बच्चों के किड्स आर वेरी इम्प्रेशनेबल. ज़रदारी साहब, बिलावल साहब एक जुमला कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, समझ आता है कि शायद वो पीटीआई के वोटर्स को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं सियासी कैदियों को हम रिहा कर देंगे. तो क्या मतलब लिया जाए? आम सियासी कैदी, 9 मई में मुलव्विस कैदी? नॉर्मल सियासी कैदी. इफ यू आर सेंटेंस्ड, हाउ कैन यू बी अच्छा रिलीज्ड? नॉर्मल सियासी. तो मेरी 5 साल हुकूमत में एक भी सियासी कैदी नहीं था. So we don't believe in politics of
वेंजेंस, बट अगर किसी ने कोई क्राइम किया है then you can't help it, then the law of the land follows through. और इन सियासी कैदियों में इमरान खान साहब फॉल नहीं करते? देखते हैं, आई डोंट थिंक सो, लेट्स सी. अभी तो उसको सजा हुई नहीं ना. इफ अगर सजा हो जाती है तो इट्स अनदर बॉल गेम. ज़रदारी साहब, इलेक्शन 8 फरवरी को है और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होगी. 1 महीना समझ लें आप, अगला महीने में कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा, जो भी होगा. शायद अगले महीने में हम फिर आपके साथ बैठ रहे हो और फिर आपसे पूछ रहे हो यही सवाल. आपको लगता है कि ये सियासी बहरान इलेक्शंस के बाद खत्म हो जाएगा या ये वसी तर हो सकता है अगर कोई कम हो जाएगा? गवर्नमेंट मेकिंग में कोई मसला ना हो तो? न, गवर्नमेंट मेकिंग में मसला नहीं होगा, कम हो जाएगा सियासी बहरान. और पीपल हैव टू वर्क. अभी जब से इंटरम आई है उससे पहले भी कुछ काम सुस्त हो गया था. अब हमने मेहनत करनी है, काम करना है. और बिलावल साहब ये भी कहते हैं कि चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे वो मियाँ साहब को. आप भी यही समझते हैं? मैं समझता हूँ कि बगैर हमारे वोटों के कोई भी नहीं बन सकता. ना वो बन सकते ना हम बन सकते. तो अगर बिलावल वोट नहीं देगा उसको तो वो नहीं बन सकता. और अगर वो नहीं देंगे तो बिलावल साहब भी बिलावल नहीं बन सकते. तो फिर ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस तो करनी पड़ेगी. देखेंगे. तो फिर दोनों साथ चल भी सकते हैं आगे जाके. देखा जाएगा, ये तो वक्त की बात है ना. अभी फिलहाल तो साथ चलने की बात नहीं है. और मियाँ साहब बहुत, क्या उनकी पार्टी, दे वेरी एग्रेसिवली एरोगेंट. हम सुन भी लेते हैं, बातें भी सुन लेते हैं, जेलें भी काट लेते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं कहते, जो हमें जेल भेजते हैं. मगर इनके यहाँ ये हिसाब किताब नहीं है. 2016 में इतनी ज्यादा आपके साथ महाजराई थी पीएमएलएन की, फिर आपकी दोस्ती हो गई, फिर आपने गवर्नमेंट उनके साथ बनाई. तो अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, अब इसके बाद हमने उनको गवर्नमेंट बनाने देना है या खुद गवर्नमेंट बनानी है, या फिर साथ साथ चल सकते हैं आगे जाके? नहीं, साथ साथ नहीं चल सकते. या वो अगर वो मेजोरिटी ले आते हैं तो वो बना ले, नहीं तो हमारी मेजोरिटी आती है तो हम बनाएंगे. मेजोरिटी यानी ज्यादा सीटें अगर आ गई तो फिर आप इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलके. इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे. मैंने कब कहा कि मैं उससे बात करूंगा? तो आप किससे बात करेंगे? हाँ, वो इंडिपेंडेंट जो आएंगे उनसे बात करेंगे. वो अगर पीटीआई मौलाना में साहब से बात करेंगे, दूसरे जमात इस्लामी से बात करेंगे, और भी तो पार्टियां, बोलो जो बाप से बात करेंगे. लेकिन नून के साथ गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे. तो ज़रदारी साहब, फिर आपको क्या लग रहा है कि चीज़ें जो है वो फिर कैसे आगे बढ़ेंगी? 90s वाली पॉलिटिक्स वापस आएगी? लेट्स होप नॉट. आजकल जमाना चेंज हो चुका है. एवरी इंडिविजुअल इज अ जर्नलिस्ट नाउ. छोटी बात होती है, वो ठक 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 करके आपको मैसेज भेज देता है. पावर गेम तो अब तब्दील हो गई. फर्क पड़ा है, बट दिस इज ऑल्सो प्रोफेशनली रन. आप प्रोफेशनल कंपनीज हायर करें, और वो आपको, वो मुझे बात याद आती है कि मुशर्रफ साहब ने गवर्नर सिंध को फोन किया, क्या नाम था इसका, इशरतुल्लाबाद, कि मेरे 1.5 लाख फॉलोअर हैं, तो वो आएंगे, मैं आ रहा हूँ, आप लाख एक आदमी आप भेज दीजिएगा. जी. ये इस सोच को आप कैसे बदलेंगे? वो 1.5 लाख फॉलोअर जो थे वो कंपनी ने बनाए हुए थे, वो जमीन पे मौजूद नहीं थे. तो जब वो आए तो आपने देखा कितना बड़ा वेलकम हुआ उनका. तो 8 फरवरी को आपको लगता है कि इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो निकल सकते हैं? वाई नॉट, निकलेंगे. हमने भी इलेक्शन अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट भी लड़ी हैं, तो लोग निकलते हैं, इलेक्शनें होती हैं. और अगर बड़ा टर्नआउट हुआ तो सारी पार्टीज के लिए मसला हो जाएगा? क्यों? पीएमएलएन के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि उनका कहा जाता है कि टर्नआउट ज्यादा हुआ तो फायदा पीटीआई को होगा. कहा जाता है, कहा जाता है. मुझे पीटीआई, छोटा सा गांव भी है, एक आइलैंड भी है, बाबा भिट कहते हैं उसको, कराची के शोर्स पे. वहां से लेके कश्मीर तक पीटीआई नजर नहीं आती. पंजाब में आ जाए तो साउथ में कम है, सेंटर में थोड़ी बहुत नजर है, केपी में है, बलूचिस्तान में नहीं है. तो टर्नआउट कहाँ होगा?
टर्न आउट तो पंजाब में ही होगा, तो 4 सीटें ऊपर 4 सीटें नीचे हो सकती हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो PMLN यहाँ की बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर सकती है पंजाब में? नहीं, उभर भी सकती है, ना भी उभर सकती है। ये भी हो सकता है कि ना उभरे। और आजाद ज्यादा आ जाए, आजाद उम्मीदवार ज्यादा आ जाए, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। और फिर पीपल्स पार्टी के लिए आसानी होगी कि आजाद सबके लिए आसानी होगी। उनके लिए जो ज्यादा तोड़ ले, तो वो तो फिर ज़दाई साहब, फिर आपके बारे में तो ये मशहूर है कि आप फिर किसी को रेजिस्ट नहीं करने देते अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए। डिपेंड करता है ना। अदम एतमाद में भी आपने ज्यादा रोल प्ले किया था, तो इसका मतलब ये कि आजाद उम्मीदवार को आप ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, जरूर। पंजाब के लोगों को। तो पंजाब में फिर किसकी हुकूमत बनेगी आपके ख्याल में? पंजाब में हम तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को अपना रोल प्ले करना चाहिए, और इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ भी मेकिंग एंड ब्रेकिंग में होगी ना आपकी पार्टी? बिल्कुल। तो यहाँ आप PMLN को सपोर्ट करेंगे अगर वो मेजोरिटी में होते हैं, जो लग रहा है? हम अपोजिशन में बैठ सकते हैं, ये क्या बात है। अपोजिशन में बैठ के हमने एक जमाने में बीबी साहिबा इलेक्शन में पूरे टर्नआउट में उनके पास वोट ज्यादा था, मगर सीटें उनको 14 दी गई थी। वो 14 सीटों पे भी लीडर ऑफ द अपोजिशन बनी और उसने मुकाबला किया। वो हुकूमत मियाँ साहब की शायद 2-2.5 साल चली। हम तो जेल में ही थे। तो अब एक और लीडर जेल में है। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी है। लेकिन यूनिवर्सिटी सिखाएगी इमरान खान साहब को आपके ख्याल में? वी आर ऑल होपिंग। लगता है आपको कि वो सीख रहे हैं कुछ? सीखेगा कैसे नहीं, वक्त बता देता है, वक्त सिखा देता है। तो उनके केसेस का मंतकी अंजाम आपको क्या नजर आता है? केसेस बेटा मेरे खत्म नहीं है, तो उनके अंजाम में क्या बताऊं मैं? अपने केसेस का क्या अंजाम बताऊं आपको? केसेस तो मेरे भी चल रहे हैं। सिर्फ मियाँ साहब के केस खत्म हो चुके हैं। तो ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? ये तो जजों से पूछा। आपके ख्याल में उनके साथ ज्यादती नहीं हुई थी? ज्यादती हुई थी या नहीं हुई थी, मगर उनके साथ आसानी भी बड़ी हो गई ना। वो सजा याफ्ता थे, मैं सजा याफ्ता नहीं हूं, आज तक नहीं हुआ। लेकिन केसेस चल रहे हैं आपके। तो ये जादूगरी पीपल्स पार्टी ने नहीं सीखी सर? ये जादूगिरी पीपल्स पार्टी को कम आती है। क्यों कम आती है? वजह क्या है? वजह होगी कोई डोमिसाइल वोमिसाइल हमारा कमजोर होगा। डोमिसाइल का मसला लग रहा है आपको, यही मसला लगता है। तो ज़दाई साहब, अगली जो हुकूमत बनेगी वो 2.5 साल चलेगी या 3 साल चलेगी? क्यों आप सोचते हैं 5 साल नहीं चलेगी? पाकिस्तान में कमी होता है कि कोई वजीर आजम अपनी टेन्योर पूरी करे, बाकी आपकी हुकूमत 5 साल चली, 2 वजीर आजम हुए, फिर बाद में 2 वजीर आजम हुए, और जो हंग पार्लियामेंट की हम बात सुन रहे हैं उसमें आपको लगता है कि पूरी टेन्योर कर लेगी पार्लियामेंट? मैं उम्मीद रखता हूं कि करना चाहिए। लेकिन आपकी उम्मीद भर आएगी कि नहीं? इंशाल्लाह आएगी। ज़दाई साहब, इलेक्शंस जो इस वक्त हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है कि पकड़ धकड़ है, दबाव है, बल्ला छिन गया, जाहिर एक सियासी जमात का। हमारे साथ भी हुआ है। करियर खत्म हो गया, तलवार छीन गई थी, फिर हमें तीर लेना पड़ा, अडॉप्ट करना पड़ा। हमारी पार्टी को बैन कर रहे थे, हमें दूसरी पार्टी बनानी पड़ी। सो दिस इज पार्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और अब यहाँ क्या, आप अमेरिका में देखें क्या हो रहा है और ब्रिटेन में क्या हो रहा है, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज में क्या हो रहा है, वही देखे लें हम। लेकिन हमारे यहाँ एक आइन है, जमहूरियत क्या भी आइन है, जमहूरियत है, उसके बावजूद वो लोगों को अपनी धरती पे रहने नहीं दे रहे, कहते हैं अफ्रीका भेज रहे हैं। अफ्रीका भेजने की जरूरत है? कहाँ गए वो प्रिंसिपल डेमोक्रेट्स? कहाँ गई प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, राइट ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ? ना गाजा पे कोई उच्च कर रहा है, ना इन बातों पे कोई बात कर रहा है। लेकिन आज़ादी इजहार तो उनके पास है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपने देखी। आज़ादी इजहार, अभी आप नेट उठाओ, टक करो तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से बोल रहा होता है, यू कांट स्टॉप हिम। तो इरादा तो नहीं ऐसा कि कोई मजीद जो है वो पाबंदियां लग जाए? देखें, बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान आप पे नहीं लगेंगी, ये मेरा वादा है। सर, हम पे बहुत लग चुकी है। लेकिन ये इस तरह इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर तो सवाल उठ रहा है ना। बेटा देखिए ना, जब हमें
14 सीटें दी गई थी, उसके बावजूद ओवरऑल पॉपुलेशन वोट बैंक हमने ज्यादा वोट्स लिए थे, तब भी सवाल उठा था, उसके बावजूद भी हुकूमतें चली थी। तो इसी तरह के इलेक्शंस होते रहेंगे हमेशा। जब तक इवॉल्व डेमोक्रेसी पूरी तरह नहीं हो जाती, और इवॉल्व डेमोक्रेसी में ट्रम्प के साथ क्या हो रहा है, आप पूछें किसी ट्रम्पर से, वो आपको बताएगा। वहां पे भी इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल प्ले कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट है या हालात हैं, है। तो अब आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में पीपल्स पार्टी होगी, इकॉनमी के मसाइल आप हल कर सकते हैं। कुछ ऐसे वादे आपके मंशूर में सामने आ रहे हैं जिनको गैर हकीकी वादे कहा जा रहा है। मसलन 300 यूनिट्स फ्री कर देंगे, बिलावल साहब कह रहे हैं 300 यूनिट्स बिजली के फ्री हो जाएंगे। हाँ, तो 300 यूनिट फॉर द पुअर ना। हाँ, व्हाई नॉट। कैसे मुमकिन है सर? इसलिए कि आपकी लाइन लॉसेस ही इतनी है। वो कैसे कम होंगी? वो आप प्राइवेटाइज करेंगे। वो आपको अगर अदालतों ने रोक दिया, कहीं और से रुक गया नहीं, तो क्यों रोक देंगे? उनको सबको पता है कि कुंडाबाजी चल रही है, लाइन लॉसेस चल रहे हैं। कम से कम 30% लाइन लॉस है। अब 30% लाइन लॉस को आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर को देंगे, वो रोक देगा। तो आपको बिजली उतनी ज्यादा मिल सकती है, और हाइडल बन सकती है, विंड बन सकती है, सोलर बन सकती है, जो आप सीधा सीधा गरीबों को दे सकते हैं। वो तो ऑलरेडी बिजली तो बहुत मौजूद है सर पाकिस्तान में भी, तो मसला तो उसको मैनेज करने का है, और ये लाइन लॉसेस मौजूद का है, है। मगर महंगी है जी। हाँ, मैं आपको सस्ती बिजली के बारे में बता रहा हूँ। तो उसमें IMF के साथ जो डील्स हैं और जो एग्रीमेंट्स हैं वो आड़े आ जाते हैं फिर पाकिस्तान वो के। आपको किसी को बिल कम करने में या किसी की गुर्बत को एलिवेट करने में नहीं आते हैं। वो आते हैं अगर आप मुफ्त में इंडस्ट्री चलाएंगे तो उसमें आएंगे। वो आप कैसे कम करेंगे? जो अशराफिया को सब्सिडीज मिलती हैं, वो उनकी जो हालात तरीके हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। अगर उनको आप इंस्टेड ऑफ 45% टैक्स उनसे कंफर्म करके आप 24% टैक्स कर दें, 25% टैक्स कर दें, तो आपके पास ज्यादा ट्रेजरी में आ जाएगा उससे जो आपके पास अब आ रहा है। तो ये आपको लगता है ये कितने टाइम पीरियड में आप कर सकते हैं? 3 साल में। 3 साल में ये होगा। और ये लेकिन ये नॉट द वो तो 1 साल की बात है जो गरीबों को हमने देना है, जैसे कहते हैं हम बिजली का जो शौक लगा हुआ है उसे हटाना है। और 300 यूनिट्स अच्छे खासे होते हैं। उस वक्त पंजाब में मेरे ख्याल है पिछली गवर्नमेंट में, PDM गवर्नमेंट में पंजाब में भी करने की कोशिश की गई थी, मगर आपको याद होगा कि रोक दिया था अदालत ने शायद। अदालत ने रोक दिया था, और इन्हें गेम नहीं की थी ना पूरा। यू हैव टू प्राइवेटाइज दी लाइन डिस्कोस। जब डिस्कोस प्राइवेटाइज होंगे वो प्रॉफिटेबिलिटी में आएंगे, और उनको हम पब्लिक कंपनीज बनाएंगे, तो फिर वो मैनेजमेंट उनकी विल बी इन द हैंड्स ऑफ। जैसे बहुत चर्चा है कि PIA को प्राइवेटाइज कर दो, और कोई तरीका ही नहीं। इनको जो चीज मिलती है ये उसको खुद खरीद लेते हैं या लोगों को दे देते हैं अपने। मेरा कॉन्सेप्ट वाज दी ऑन द अदर साइड। PIA के सिर्फ रूट्स ऐसे हैं कि दोज आर वर्थ बिलियंस, ओनली द रूट्स। सिर्फ आप रूट्स जितनी पॉपुलेशन आपकी बाहर है, दे विल रादर PIA में आके ट्रैवल करें या किसी चीज और एयरलाइन में ट्रैवल करें। आपके जहाज अप टू डेट होने चाहिए। तो आप रूट्स को बेचेंगे, PIA को नहीं बेचेंगे? नहीं, रूट्स को भी नहीं बेचेंगे, PIA को भी नहीं बेचेंगे, दोबारा उसको खड़ा करेंगे। ये तो ऐसे सफेद हाथी बन गए हैं ये नहीं, इदारे। ये दिस इज जस्ट इस्लामाबाद टॉक। इस्लामाबाद में ये सोच है। आपकी पॉपुलेशन देखें, आपको अपने लिए कितने जहाज चाहिए, और फॉरेनर क्यों आएगा? उसको तो डॉलर डिनोमिनेशन में मार खा जाएगा। तो उसके बिकने के कोई चांसेस आपको नजर नहीं आते? इंशाल्लाह बेचने भी नहीं देंगे। और बाकी स्टील मिल और ये तमाम इदारे जो सब बन सकते हैं, चल सकते हैं विदाउट सेलिंग। लेकिन उस वक्त जब आपकी गवर्नमेंट थी तब ये रिवाइव नहीं कर सके थे। तो इतनी हुकूमत थी नहीं हमारी। And when you remember, when I was president, I gave over the powers. तो इंशाल्लाह अब करेंगे। आपने पार्लियामेंट को किया। मैंने सुना है कि कुछ ये भी बात हो रही है कि अब प्रेसिडेंट के उतने पावर्स जो थोड़े बहुत हैं
وہ ان کو بھی اور زیادہ کم کیا جائے گا, صرف سمبولک رکھا جائے گا, ایسا ممکن ہے؟ پاسبل ہیں پاورز کیا؟ میری نظر میں تو سب پاورز تو پارلیمنٹ کے پاس ہے. ابھی بھی الوی صاحب, صدر الوی نے تو کافی اپنے پاورز استعمال کیے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو, سوائے وہ جو ہر 15 دن بعد وہ ایک ایشو کر دیتے ہیں. پیش منظر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر پاکستان کی سیاست کا؟ وداؤٹ پیپلز پارٹی, ود پیپلز پارٹی گورنمنٹ جو بھی آئے گی, اس میں کیا نظر آتا ہے, کس طرح کیسے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ پاکستان میری نظر میں آئی ایم اے گریٹ ایڈمائرر آف مائی اون دھرتی. میں پاکستان میں ہر چیز ہو سکتی ہے, ایوری تھنگ. آئی کین بی اے فورس ملٹیپلائر فار چائنا. China's import is $5 trillion as far as food is concerned. We can supply to China any amount of chickens, meat, beef, anything we want. We just have to. China کا جو پورٹ کا میرا ایگریمنٹ تھا, گوادر پورٹ کا, اس کو نے سی پیک کو سمجھ کے اور سی پیک کو جنگلہ بچ سمجھ کے چلایا ہے. اٹ از ناٹ دیٹ, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. سندھ میں ہمارے زیادہ تر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ رستے بن رہے ہیں, بریجز بن رہے ہیں. آئی ڈونٹ نیڈ اینی باڈی ایلس. سو پاکستان میں پیسہ ہے. آئی ڈونٹ نیڈ فارن انویسٹمنٹس. آئی جسٹ نیڈ ٹو میک شیور مائی اون بزنس مین آر ہیپی. ان کو میں تھوڑا امیر کروں تاکہ وہ ٹیکس دیں. تو NA 1 to 7 لاسٹ کوشچن ہے, آپ کو لگتا ہے بلاول صاحب جیت جائیں گے؟ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے. امید زیادہ ہے آپ کو؟ رکھیں گے یہ سیٹ یا لاڑکانہ والی اپنی رکھیں گے اور یہ چھوڑ دیں گے جیتنے کے بعد؟ دیکھیں گے, اس وقت ہو سکتا ہے آصف آ جائے اس سیٹ پہ. ریئلی؟ اچھا, یعنی آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, اور آصفہ کو اسی لیے آپ نے نہیں لڑوایا پہلا الیکشن, لگ ایسے رہا ہے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ